starting our program. The Galaxy of Intellectuals invited guests, parents, teachers, and my dear friends. A pleasant evening to you all. Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream big, for every dream leads the goal. Today is a special and memorable occasion, one that we'll remember in the year ahead. It is the time to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. On behalf of the Sunny Convent School family, I warmly welcome you all to our 30th annual function, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। आज हम यहाँ अपनी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह फंक्शन हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है, जहाँ हर रंग, हर गीत और हर नृत्य हमारी सांझी विरासत को दर्शाता है। A very good evening to our esteemed principal, respected chief guest, dedicated teachers, loving parents, and our brightest stars, our students. Welcome to our annual day 2026. हमारी संस्कृति, हमारी विरासत. I am Shipra and I am Tanya. We are thrilled to be your host for an evening celebrating talent, hard work, and the spirit of our school. Lord Ganesha is always worshipped, first in our Hindu religion. So how can we forget to pray Ganpati Bappa in our function? So let's call upon the stage with the first performance, Ganesh Vandana, also known as Vignaharta. Let the celebration begin with Ganesh Vandana. Give a big round of applause. Parents, give a big round of applause for our first performance. पीछे दिख रहे हैं। स्टैंडिंग है ना? क्या मतलब? हाँ है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय
our program. That performance truly filled the atmosphere, the peace and the grace. Thank you performers for such a powerful and spiritual beginning. It is moment of immense pride for Sunny Convent School to welcome our guest, Dr. Piyusha Majumdar, Dr. Vikas Dhikau, and Ms. Seema Dhawan. Your presence today is like a guiding light for our little stars. We are truly grateful to have such an inspiring personality among us. Give a big round of applause for our guest. मैम इसे अरेंज करेंगे. माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय माता पिता तथा मेरे प्यारे साथियों, आज का यह पवित्र अवसर अत्यंत हर्ष एवं गर्व का क्षण है, जहां हम सब एकत्रित होकर अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में विचार विमर्श करते हैं. आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज का उत्सव बनाने जा रहे हैं. हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माता है और हम उसके संतान हैं. वृक्ष, पौधे, जल, वायु ये सभी हमारे जीवन के आधार है. इसीलिए इस वार्षिक समारोह की शुरुआत हम एक अनोखे और हृदय स्पर्शी संकल्प से कर रहे हैं. जीवन की पहली क्रिया के रूप में एक जीवित पौधे को जल अर्पित करना. यह पहली बार हो रहा है कि हमारा स्कूल वार्षिक समारोह की उद्घाटन प्रक्रिया को इस पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक से शुरू कर रहा है. हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है 10 कूपा समा वाणी, 10 वाणी समो हद, 10 दसमा पुत्रो, 10 पुत्रो समा ध्रुवो. इसका मतलब होता है एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर, एक तालाब 10 बावड़ियों के बराबर, एक पुत्र 10 तालाब के बराबर और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है. यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि वृक्ष का महत्व असीमित है. वह न केवल अपनी छाया, अपने फल, फूल, औषधि देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन प्रदान करता है और एक अत्यंत प्रेरणादायक महिमा भी बताता है. We symbolize our commitment to preserving our environment and nurturing our future. हमारी प्राचीन संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माता है और हम उसके संतान हैं. इसलिए इस वार्षिक समारोह की शुरुआत हम एक अनोखे और हृदय स्पर्शी संकल्प से कर रहे हैं. To begin this green inaugural, may I request to Honorable Chief Guest, Principal Ma'am, Board of Directors to join us on stage for the green inaugural ceremony. Give a big round of applause for this occasion. Clap for our guest for stage. Ragini ma'am. Ragini ma'am.
कम बेटा यहाँ से चल। जैसे ये पौधा धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। Let's pledge to grow together and keep our earth green. A big round of applause for the eco-friendly start. मंत्र डन। मंत्रोच्चारण लगा दीजिए। फल आए हुए हैं, ऐसे ही फल हमारे देश का भविष्य है। ऐसी ही शिक्षा देता रहे। और इसी तरीके से फल तक। Give a big round of applause for this green inaugural start. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for this beautiful start. One tree can start a forest, one word can frame a goal, one candle can wipe our darkness. A true leader has a confidence to stand alone, to courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the need of others is an all. Our principal ma'am, Ms. Dimple Singh. Now I request to our guiding light, our principal ma'am, to share their vision for the future with us. Give a big round of applause for our ma'am. Thank you, Manisha. It's pleasure to be here in front of you, representing Sunny Convent School that speaks just quality, nothing else. First of all, I would like to welcome all of you. Thank you. This evening is very special as we are celebrating our 30th annual day function. Respected chief guest, we are waiting for our chief guest, Mrs. Renu Khatri, CRC, Government and Private, School Zone 10, Directorate of Education, and Shri R.S. Goswami, ex-chairman Bar Council of Delhi, ex-chairman Enrollment and Indigent Committee, BCD, esteemed guest of honor, Dr. Pisha Majumdar, associate professor at IIHMR University, Jaipur, executive producer and host of the Ensure Health podcast, and acclaimed TEDx speaker. Thank you. Dr. Vikas Zikar, medical scientist and deputy director at the Indian Council of Medical Research, Government of India. And Shri Ajay Sharma, still we are waiting for him, and the Chief of Department, Delhi Fire Services, State Government of Delhi. Our special guest of honor, Mrs. Neelam Kumari, Head of Raja Ram Mohan Roy School, Poot Khurd, and D nominee of Sunny Convent School. And special invitee, most of the guests are still not coming. We are waiting for them. And tonight, we are specially honored by the presence of such towering personalities on our stage, who are true pioneers in their respective fields, whose contribution have left an indelible mark on society, and who need to elaborate introduction because their work speaks volumes. And our respected founder, guiding beacon and chairman of the school management committee, Dr. Ratan Singh, whose vision and blessings continue to nurturing this institution. मैं आप सभी को 1986 में लेके जाना चाहती हूँ, जिस पौधे की नींव
उन्होंने डाली थी, डॉक्टर रतन सिंह। एक छोटा सा पौधे की बीज उन्होंने बोया था, जो आज एक पेड़ बन के हम सभी के सामने आया है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 30 साल बाद भी हम उस मुकाम पर हैं जहाँ हम उस पौधे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आप सभी का सहयोग इसी में चाहिए कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो हम इसे और आगे तक लेके जाएंगे। और बहुत बच्चों को हम शिक्षा देना चाहते हैं जो ज़रूरत चाहते हैं, जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है। हाँ, ये स्कूल उन लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहा है। तो आप लोग इस मार्गदर्शन में मेरा सहयोग देंगे? क्या आप लोग मेरा सहयोग देंगे? बिल्कुल, इसी आवाज़ की ज़रूरत है मुझे। एंड नमस्ते। मैं आप सभी को एक चीज़ और याद दिलाना चाहती हूँ स्कूल के बारे में। मैं कुछ आप सभी के सामने एक बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि स्कूल के बच्चों ने जो प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और मेरी टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, अ वार्म वेलकम ऑन दिस ओकेजन। हमारी संस्कृति हमारी विरासत, ये आज का थीम 30th एनुअल डे फंक्शन का है। थीम ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति है, हमें उसे आगे लेके जाना है, जो ओवरशेडो हो चुकी है। हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, पर इस सोच के साथ कि शिक्षा का मतलब आगे बढ़ने तो अग्रसर होना ही है, पर वो हमें अपने हेरिटेज को छोड़ना नहीं है जो ओवरशेडो हो चुकी है। तो हम इस थीम को बढ़ाते हुए, ये अपने समाज में शिक्षा देते हुए कि हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति हमारी हमारी संस्कृति हमारी विरासत है। तो सनी कॉन्वेंट स्कूल की पहचान इसी से ही है, बिल्कुल हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम इस संस्कृति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और एक मैं छोटी सी एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ स्कूल के बारे में, जिसमें स्कूल में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। एक कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों ने 5 पोजीशंस में अपने विनिंग रहे। वो कोई फर्स्ट प्राइज़ डिबेट कंपटीशन में, सेकंड प्राइज़ डांस कंपटीशन में, एंड स्पोर्ट्स में आई थिंक फर्स्ट प्राइज़। तो ये हमारे स्कूल की एक अचीवमेंट है जो बच्चों ने हमें दी। ये उनकी नहीं, ये मेरी अचीवमेंट है और पेरेंट्स की है। ठीक, धन्यवाद सभी का। और हमारा स्कूल निरंतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा देने के सभी प्रयास अपने बल पर कर रहा है। उसके लिए हमें आप सभी का सहयोग है। और जो लोग नहीं चाह पा रहे हैं शिक्षा देना, तो स्कूल उनको एक मार्गदर्शन देता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनमें फादर्स है, सिंगल पेरेंट्स के लिए स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता है। तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए भी, और उनके लिए जो समाज में ये सभी का अधिकार है। तो बच्चों को ये अधिकार स्कूल ने दिया है। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, आप आए, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सभी का। सीमा धवन हमारी स्पेशल मैम जो टाइम निकाल के आई, डॉक्टर पीशा मजुमदार, डॉक्टर विकास धिकव, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you all of you. Thank you Manisha. Thank you Principal Ma'am for your kind words and constant encouragement. It always a pride to hear from you. We are really blessed to have a principal like you. Give a big round of applause for ma'am. Now let's start with some golden words from the guest sides. First, I would like to call Ma'am Seema Dhawan on the stage to give us some words, golden words to us. Give a big round of applause to Ma'am. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जवाब नहीं दिया आपने। ओके, या यू नीड टू मेक सम नॉइस।
Namaskar. Thank you so much. Anyways, it's an absolute pleasure for me to join here in your celebrations of 30 glorious years. So when I was told, your principal ma'am told me that this is just a small school, I was thinking कि small किस चीज़ में, quality तो कहीं से भी small नहीं है, quality तो बहुत ज़्यादा है. So it's not about the number of students or the number of teachers, it's what kind of quality you are giving to the students. What I found over here that education is एक पार्ट है, लेकिन overall there is a holistic development of the students which is being enforced upon over here. Do you understand the meaning of holistic? Holistic का मालूम पता है बच्चों? नहीं है तो पूछिए. Holistic is overall development, means mental development, physical development, emotional, जो कि बहुत ज़रूरी है. सिर्फ एक नंबर से ही एग्ज़ाम में नंबर लेना ही सब कुछ नहीं होता. आपका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ कैसी है, जिस तरीके से आजकल हेक्टिक लाइफ चल रही है, आपने देखा होगा रोज़ दिन कितने बच्चों को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. बट मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है. और सबसे बड़ी बात है प्रिजर्विंग हेरिटेज. वी आर इन सच अ फास्ट पेस वर्ल्ड dominated by internet. Of course, global awareness is very, very important because we have to compete with the people all around the world. But एक heritage को लेके चलना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अपने roots को भूल जाना, अपने culture को भूल जाना. छोटे छोटे बच्चों ने एक performance दी थी गणपति, कितना प्यारा लग रहा था. बच्चे अपने आप, मुझे आपके प्रिंसिपल मैम ने बोला कि बच्चों ने खुद तैयारी की, टीचर्स ने तैयारी की, तो वो सब कुछ कितना अच्छा निकल के आया. और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बिफोर जॉइनिंग द मीडिया वर्ल्ड आई वॉज ऑल्सो अ टीचर in a school, though for a very short while, and I do understand कि टीचर्स में टीचिंग करने के लिए कितना पेशेंस चाहिए, कितना डेडिकेशन चाहिए, कितना लव चाहिए. और बिल्कुल यू हैव टू वर्क अनसेल्फिशली करना पड़ता है कि बिना एक्सपेक्टेशन के. मैं एम्पथाइज कर सकती हूँ आप सब लोगों के साथ. इट्स नॉट ईजी. आज आप लोग मुझे मेरे वापस उस दौर पे ले गए हैं जबकि मैं खुद टीचर थी, और आज मैं मिस कर रही हूँ बीइंग अ टीचर. बहुत इन टीचर्स को देख के कितनी खूबसूरत लग रही हैं. और बच्चों, फ्यूचर जो है वो बहुत ग्लोरियस है, बहुत खूबसूरत है अगर आप सब लोग उसको संजो के चलो. दिस इज़ ऑल सब कुछ मिलजुल के है. पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, वो भी बच्चों के पेरेंट्स की प्रॉब्लम सुनते हैं. सो इट इज़ ऑल दोनों का जॉइंट वेंचर है, जॉइंट है सब कुछ कि आप सुनो, अपनी बात कहो, बच्चों की प्रॉब्लम्स को बताओ, और बच्चों आपको भी टीचर्स के साथ अपनी सब चीज़ें शेयर करनी है. डोंट हाइड एनीथिंग. इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, प्लीज़ कम एंड शेयर विद योर टीचर. पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते, टीचर से पूछिए. टीचर्स आपको सोल्यूशन देंगी, बिकॉज व्हेन आई वाज अ टीचर आई यूज्ड टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स एज वेल. तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम हो. आई वुड सर्टनली लाइक टू कम अगेन एंड अगेन. कहीं मेरी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, सिंस आई एम फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड नाउ, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट, एब्सोल्युटली इन अ ग्लैमरस वर्ल्ड, बट सर्टनली कहीं किसी को कभी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. एंड जस्ट कॉल अवे डिम्पल. एंड kudos to you, parents. Students, give a pat on your back. आपका ही इतना हौसला है जो इतना बढ़ के आगे आए हैं, ये इतना प्यारा आपने प्रोग्राम दिया है. पेरेंट्स, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन टू द प्रिंसिपल मिसेस डिम्पल सिंह. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द चेयरपर्सन डॉक्टर रतन सिंह. एंड दिस इज not just a 30 years, many more and more glorious years to come.
You are not just shaping students, you are shaping the future of India so patiently, so beautifully. Dimple and the teachers and the students and the parents. Thank you so much. और एक चीज़ बताऊँ, मैं कुछ लिख के आई थी and I forgot everything. So I started just speaking on my own. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those incredible insights words. You are the power of discipline on the growth of students. Now it's our immense honor to welcome our chief guest, Miss Renu Khatri ma'am, with a big round of applause. Your presence adds immense grace. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We have one more guest there. It is our immense honor to welcome our guest, Miss Sunita. Okay. Ma'am Darshan Sharma and Manoj. Sir. Please give a big round of applause with that. Moving forward with our evening, it is now time to hear from a visionary who works tirelessly at the grassroots level of our education system. We are deeply honored to have with us Ms. Renu Khatri ma'am, the esteemed Customer Resources Coordinator from the Zone X Education Department, Delhi. Her dedication ensures that the light of quality education reaches every classroom in our zone. With a huge round of applause, I most respectfully invited Ms. Renu Khatri ma'am to the podium to grace us with her words of wisdom. Give a big round of applause for ma'am. Very good evening all of you and auditorium में available सभी audience को मेरा नमस्कार. Myself Renu Khatri, cluster coordinator from Northwest State, Zone 10 also. And thank you so much Dimple ma'am and the entire team of Sunny Convent. You are doing such a great job. With this much of resources na, and you know na, output, productive approach. Thank you so much. That's for enough na. You may continue. Thank you so much, ma'am. Those insights were, you are a power of discipline on the growth of students. Give a big round of applause for ma'am. पेरेंट्स तालियां नहीं बजा रहे हैं बिल्कुल भी, वो सिर्फ प्रोग्राम देखने आए हैं हमें लग रहा है. देखिए प्रोग्राम देखने से अच्छा है हमें एक मैसेज, इतना अच्छा मैसेज मिलता है अपने गेस्ट से, वो हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि वो कितने एक्सपीरियंस पर्सन है, वो हमें इतनी चीज़ें बता रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रोग्राम के लिए ही हम आए हैं और उसको कराए बिना हम जाएंगे नहीं. ठीक है, वंस मोर, एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि आप भी सुन रहे हैं मैसेज को, अपने लाइफ में सोच रहे हैं कि उसे उतारेंगे अपने जीवन में, वो चीज़ है इम्पॉर्टेंट. Now, again we have some guests to speak.
Ladies and gentlemen, as we move forward is our celebration, it is time to welcome our guest whose work beautifully bridged the gap between academic excellence and the public well-being. It is my honor to introduce Dr. Piyusha Majumdar ma'am, Associate Professor at the prestigious IIHMR University, Jaipur, with a PhD and a deep-rooted passion for public health and implementation researches. She is a powerful voice in the digital space as the executive producer and the host of the Ensure Health podcast. Please join your hands together for a warm welcome to Dr. Piyusha Majumdar ma'am. Good evening, everyone. Is the momentum high for everyone? How's the Josh? How is the Josh? So please keep your Josh high because it's the annual function. I still remember when we were doing our annual function in the school, there was so much of enthusiasm. There was so much of, magical things happening. I know you're waiting for your performances, but enthusiasm should not stop. So, hello everyone, and thank you so much, Ms. Dimple, Ragini, and the entire school management system for inviting me to your annual function here. First of all, it's an incredible honor to stand before you here because we are celebrating here the achievement of your school. The school that started with a vision. The school that started with a vision to provide quality-based education for the children from very humble and diverse background in Delhi. So the history, when I talk about the history which Dimple ma'am told us, so it started in 1986 when an educator, Dr. Ratan Singh, he has started this school in a very small setup. But now, with a persistent hard work, we have seen how much this school has grown. Now, this school has, it has become fully compliant school. So this journey is a truly inspiring journey. So my dear student, I'm happy that you all are here, your parents are here, and you're celebrating this. But I really want you to understand something very profound. You're not just a student at Sunny Convent School. You're a generation that will witness and build India's transformation into a developed nation by 2047. You are the generation who will see when our country celebrates 100 years of independence. So it's a remarkable journey that you are going to see us here. And as a young citizen of this country, each one of you has a very unique role to play in this transformation. Modi ji talks about Viksit Bharat. So it's not just that we have to do the economic growth, but we wanted to build an India where every child, regardless of their background, they get a world-class education and also social equality, and every student, every citizen get an equal opportunity. So my dear student, when you are studying for your exam, you're building the knowledge that will solve tomorrow's challenges. When you're participating in any sports, you're not just playing games. You are developing the resilience and teamwork that will lead to future organization. When you engage in cultural activity, I'm happy that you have chosen a very brilliant theme here, Hamari Sanskriti, Hamari Virasat. So when you engage in these cultural activities, you're preserving and enriching the diversity that will make our country very unique. So the school is giving you something very precious, that is value-based education.
So, you are here to build a society. You are here to build a society that will work with compassion. Now, I don't want to, give a big speech, and I'll not come in between your cultural celebration. I just want you to focus on 3 things before you leave this auditorium. First and the foremost, you make a promise to yourself that you will learn one skill each year, because it is very, very important. Building new skill every day or every year will help you in, surviving or transforming the world. It could be anything, be it a local language you want to learn, or any new skill you want, or you want to protect the environment, or coding, anything. So just do that. The second thing that I want you to do is you have to dream big. It is really important to dream big. But start with a small step today. Being a student, I always saw a dream of reaching to World Health Organization one day. And now the dream has, it has come true now. So it's always important to dream big, but always start something. And the third most important thing, contribute something to the society. You're the future of the world. So you have to think bringing or giving something to the society. So you must do that. And I think I just, in the last moment, I just say that make us proud. My dear student, please make us proud. Do something to make your teachers proud. Do something to make your society proud. Do something to make your parents proud. But most importantly, do something to make yourself proud. So thank you so much, and I hope that you will come up with the flying colors. Thank you so much, ma'am, for those golden words. Your journey reminds us that education is the most powerful when it is used to serve and heal the community. Thank you so much, ma'am. Give a big round of applause for Dr. Piyusha Majumdar, ma'am. Now we have one more personality. It is a moment for pride, all of us. We have privilege to welcome a man who stands at the forefront for the India's medical excellence and the scientific innovations. He is a senior medical scientist and currently serves as the director at the Indian Council of Medical Research, Government of India. His dedication of science and his leadership, ICMR at the medical research in India, make him a true nation icon. I now most respectfully request on Dr. Vikas Thikau ji to kindly grace the dais. Sir, your presence is a huge motivation for our students and faculties alike. Give a huge round of applause, everyone. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शाम के नमस्ते। देखिए, जब 4 सशक्त महिलाएं आपको संबोधित कर चुकी हों तो इतना आसान नहीं है। इंडीड जब मैं पौधे को पानी दे रहा था तो मैंने कहा, देखिए, प्रकृति की शुरुआत जो है वो नारी से होती है, क्योंकि जन्म जो है वो नारी देती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी माताएं, जितनी बहनें बैठी हैं, देखिए, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऑफ कोर्स आप अपने बच्चे को संभालती हैं, घर को संभालती हैं, और उसके बाद में परिवार की सेवा करती हैं, तो ये इनडायरेक्टली समाज की सेवा है। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैडम को बधाई दूंगा कि ये जो काम आप कर रही हैं, ये आम आदमियों का काम नहीं है, आम व्यक्तियों का काम नहीं है, ये फरिश्तों का काम है। तो ये तो जो फरिश्तों जैसा काम आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए तो सब ताली बजाएं एक बार ज़ोर से, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं आज के दिन
कि मैं कौन से बड़े फ्लैट में चला जाऊं, मैं कौन से बड़े घर में चला जाऊं, लेकिन आम बच्चों के साथ जुड़ना, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं को सुनना, और भावनाओं को सुन के वो तो मिट्टी की तरह से होते हैं बच्चे, तो उस मिट्टी से एक ऐसी मूर्त बनाना जो मूर्त जो है चमकती रहे। और आज नहीं, आज तो छोटे बच्चे हैं, कल ज़्यादा चमके, परसों और ज़्यादा चमके, तो ये आसान नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सनी कॉन्वेंट स्कूल की जो जर्नी 1986 में शुरू हुई थी, अब स्कूल को शुरू हुए 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस की है कि इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, एक ऐसा मैं कहूँ कि एक ऐसा नज़रिया बनाया है कि जिसमें आप बच्चों को एक गुड क्वालिटी एजुकेशन दो, उनको एक अच्छा नागरिक बनाओ देश का, और साथ ही साथ देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले पीयूषा जी ने लिया, तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है दुनिया में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करना, पब्लिक का स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो इस बारे में रिसर्च करना। तो वो ये ऐसा बोलता है कि अगर आप नागरिक के तौर पे समाज के बारे में नहीं सोचते हैं तो शायद आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। और देखिए यही बात जो है मैडम सीमा ने कही थोड़ी देर पहले, तो अब की बार का जो आपने थीम रखा है जिसमें 3 चीज़ें आपने रखी हैं, 3 चीज़ें मतलब जैसे बोले तो नेचर, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, तो इसका एक पार्ट है नेचर जहाँ से आपने फूल मतलब एक पौधे से शुरुआत की, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है सेल्फ। तो जो आपने रखा है नेचर, प्रोटेक्टिंग दी नेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि अभी AQI 400 हो गई, 500 हो गई, अब 700 हो गई। कौन AQI करता है? देखो ऊपर से कोई खुदा का बंदा आके तो यहाँ पे कोई डस्ट तो नहीं फैलाता, हम ही फैलाते हैं। तो कुछ तो कारण हम हैं, कुछ कारण जो है वो औद्योगिक हैं, कुछ जो विकास से जुड़े हुए कारण हैं। तो अब नेचर को इस सूरत हाल में कैसे प्रोटेक्ट करें? एक उदाहरण तो आपने देख लिया, पौधा लगाना। हम कोशिश ये करते हैं, अब जैसे कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो छोटी बेटी 12 साल की है, तो हमने 12 पौधे लगा दिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि देखो कि छोटा सा बूंद के समान, ये हम ये नहीं कह रहे कि पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन क्या एक बूंद के समान योगदान, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग द नेचर। कि आप प्रकृति से ले तो रहे हो बहुत कुछ, सुबह ब्रश करते हो, इतना पानी यूज़ करते हो और खाना खा लेते हो, पशु जो है बेचारे उनके लिए खाना इतना नहीं बचता, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुविधाएं, लेकिन प्रकृति को कुछ दें भी। तो इससे फिर धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे वनों की संख्या बढ़ेगी, तो आपको पता है ये बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक तरीका हो सकता है, एक छोटा तरीका हो सकता है। तो ये तो हुआ प्रकृति। अब है सोसाइटी। अब देखिए अक्सर हम जब भी मैं पार्क में जाता हूँ बच्चों के साथ, तो मैं ये बोलता हूँ, बच्चे कहते पापा ये इतने पॉलीथीन के डस्ट, ये रैपर्स पड़े हुए हैं, ये कौन डाल देता है? तो मैं कहता हूँ बेटा ये हम ही डालते हैं, हम डालते हैं, हमारे बच्चे डालते हैं, कोई तो डालता ही है। तो कहते हैं ये किसी को कंप्लेन करते हैं, चलो फ़ोन करो, किसी को फ़ोन करते हैं। मैं कहता बेटा ये फ़ोन वोन तो बाद की चीज़ है, मैं खुद ही जाता हूँ 2-4 पॉलीथीन 10, 15, 20 जो मुझे दिखते हैं मैं उठाता हूँ, उसको डाल देता हूँ। तो ये मैंने सीखा 2011 में। मैं चीन गया, ग्वांगझोउ, 15 साल पहले। तो मैंने देखा वहाँ पे एक से एक व्यक्ति, ऐसा नहीं हम कोई चाइना की अच्छाई बता रहे हैं, चाइना में 1000 कमियाँ होंगी, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया सपोज़ उसकी जेब में कोई रैपर है, तो वो क्या करता है कि मतलब वो चीज़ों को खा के और रैपर को कभी सड़क पे नहीं फेंकेगा। प्रोटेक्टिंग द नेचर, रिस्पेक्टिंग द सोसाइटी। और यही चीज़ आप देखिए, चलो हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, तो आप जाइए मेघालय, शिलोंग, वहाँ भी आपको यही कल्चर मिलेगा। अगर आप एक चिप्स का पैकेट खरीदेंगे तो दुकानदार जो है आपको चिप्स निकाल के पहले एक लिफाफे में, कागज़ के लिफाफे में देगा, और कागज़ के लिफाफे में देने के बाद में वो जो रैपर है खुद अपनी जेब में या अपने डस्टबिन में अलग से डालेगा। तो ये मेघालय, शिलोंग, हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे भी ये कल्चर है, और ये कब अब से नहीं बहुत समय से है। तो ज़्यादा दूर क्यों जाएं, ये यहाँ पे देखो सेक्टर
15 और 16 का जो डिवाइडिंग रोड है, जैसे आप इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो नहर पड़ती है, तो अब नहर में पूजा है, पाठ है, देखो उसका सम्मान है, उसका पूरा सम्मान है। जो पूजा को हमेशा नतमस्तक करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये पॉलीथीन, ये पूजा का सामान, ये अखबार, ये धूप बत्ती, ये सब डालते हैं। तो ये भी हो सकता है कि साथ में जो एरिया है उसमें डाल दें। बहते हुए पानी को तो नमस्कार ही करें। देखो बहता हुआ पानी तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, सब लोग ऐसा बोलते हैं, और ये हम पृथ्वी के ही बच्चे हैं। तो कहने का मतलब जो रिस्पेक्टिंग द नेचर, प्रकृति को उचित सम्मान, ये एक तो हम बोल दें कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एक अपने जीवन में उतारें। तो मुझे जब भी समय मिलता है शनिवार इतवार को, तो मैं ये जो घाट है, घाट जिसको बोले, हम घाट बोलने लगे, घाट नहीं है, तो जो 15-16 का डिवाइडिंग नहर है, यहाँ पे जितने पॉलीथीन है मैं खुद बहुत बार साफ़ करता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं आप कोई नेता हो, आप कोई इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, तो मैं तो आम इंसान हूँ, तो मैं जाके मैं खुद ही कर देता हूँ। तो लोग बहुत बार फ़ोटो वोटो लेते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो ये आप अपना करते रहो, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, समय की कमी होती है, लेकिन व्हेनेवर आई गेट टाइम सो आई डू इट माई वे। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा काम है अपनी खुद की स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब देखिए मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, वो बात अलग है, सरकार ने मुझे एक अलग जिम्मेवारी दी हुई है। तो मैं बहुत साल पहले 2006 में पैराडाइज अपार्टमेंट से मैंने शुरुआत की, 18 में ही है। तो वहाँ पे मैं अक्सर कैंप लगाता था, हर 2 महीने 3 महीने में हेल्थ कैंप, फ्री में सबका चेकअप करता था। तो उसके बाद में मैंने शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी होगी आसपास जहाँ पे हेल्थ कैंप ना लगाया हो। पीछे अब तो खैर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन गया, मेट्रो के बिल्कुल पीछे यहाँ पे मज़दूरों की एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती थी। तो मतलब सोसाइटी क्या, एक फैक्ट्री होती थी जहाँ पे लगभग 150 मज़दूर रहते थे। तो वहाँ पे भी उनका जो भी हेल्थ चेकअप था, तो वट एवर आई कुड डू आई डिड। तो मेरे कहने का मतलब 3 जो हिस्से जो मुझे समझ में आए, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। एक तो देखिए हम बोले हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करो, संस्कृति को प्रिजर्व करना ये मतलब कोई एक बोले तो स्लोगन नहीं है, ये भारत का हमेशा से तरीका रहा है। ये संस्कृति की रक्षा और संस्कृति की जो बोलें कि उसको आगे बढ़ाना, प्रोपगेशन, ये भारत की जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन इसको स्लोगनिज्म और प्रैक्टिकलिज्म में फ़र्क है। एक तो हम बोलें कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, एक खुद कुछ ना कुछ छोटा सा, चाहे बूंद के समान हो, बूंद के समान। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। और आप देखिए कोई भी सफल व्यक्ति, आप किसी की भी कहानी, एलोन मस्क की आप बायोग्राफी देखें, अल्बर्ट आइंस्टीन की देखें, अब्राहम लिंकन की देखें, और तो और हमारे कलाम साहब की देखें। कलाम साहब यही बोलते हैं कि एक एक ईंट जब आप रखोगे तभी घर बनेगा। ऐसा नहीं हो कि आप बटन दबाओ। जो पंचतंत्र की कहानियाँ वो अच्छी हैं, लेकिन वो कहते हैं बटन दबाओ, जादुई चप्पल मिल गई, जादुई कालीन मिल गया, तो जादुई मटका मिल गया, जादुई कुकर मिल गया। तो ऐसे कहानियों में होता है। असलियत में तो धीरे धीरे हम मेहनत करते हैं, तो हम अपना निर्माण करते हैं, अपने समाज का निर्माण करते हैं, और हम अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो सनी कॉन्वेंट स्कूल को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और मैं अपनी तरफ से जो मेरे से संभव है, जैसे क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो अगर मान लिया आप कभी हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं, तो मैं और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्कूल के लिए संभव है मैं वो करूँगा। और ये मेरी तरफ से आपको ये मेरा एश्योरेंस है। और क्योंकि हम पास में ही रहते हैं, बाकी लोग भी पास में ही रहते हैं, दिव्या ज्योति, तो हमारा ग्रुप जो है वो छोटा ही है, तो आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और मैं आपके जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि डिम्पल मैडम फरिश्तों जैसा काम कर रही हैं। क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को गाइड करके और उनको तराश करके और मूर्ति बनाना आसान नहीं है। अभी भी आप देखिए, अब मैंने पहले 12th की, फिर MBBS की, फिर MD की, PhD की। मुझे जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है अपने टीचर्स की, वो मेरे स्कूल के टीचर्स की है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया। तो स्कूल टीचर को हमेशा एक सम्मान की नज़र से समाज में देखा जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो नज़रिया है ये आप भी अपने दिल में रखें, और अपने बच्चों के लिए जो आप कर सकते हैं, उनकी मोरल एजुकेशन के लिए, फिज़िकल एजुकेशन के लिए, मोबाइल से दूर रखने के लिए उनको जो प्रयत्न कर सकते हैं। और जो हमारी संस्कृति कहती है कि मोबाइल में ही सब कुछ, अब पढ़ाई का तरीका नहीं है,
चाहे उनको कोई कॉमिक्स ला के दें या कोई किताब ला के दें और थोड़ा बहुत बाहर खेलने के लिए उनको भेजें, तो मुझे लगता है कि बच्चों की बेहतरी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।